یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کی طاقت تلوار سے زیادہ ان کی بات پر ہوا کرتی تھی اور رعایا بادشاہ کے فیصلے کو تقدیر سمجھ کر قبول کر لیتی تھی۔ شہر زرنگار بھی ایسا ہی ایک شہر تھا جہاں اونچی فصیلیں، کشادہ بازار اور سونے سے سجا دربار موجود تھا۔ لوگ بظاہر مطمئن تھے، مگر اس اطمینان کے نیچے ایک خاموش گھٹن پل رہی تھی۔ بادشاہ حارث بن داؤد کو تخت سنبھالے 20 برس ہو چکے تھے۔ وہ ظالم نہیں تھا، مگر کمزور ضرور ہو چکا تھا۔ عمر کے ساتھ اس کی آنکھیں نہیں، اس کا اعتماد دھندلا گیا تھا۔ وہ انہی باتوں کو سچ سمجھتا تھا جو بار بار اس کے کانوں میں ڈالی جاتے۔ دربار میں موجود وزراء، امرا اور بڑے تاجر یہی کمزوری پہچان چکے تھے۔ شہر میں انصاف تھا، مگر صرف ان کے لیے جو بولنا جانتے تھے۔ انہی دنوں شہر کے پرانے حصے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ وہ نہ عالم تھا، نہ خطیب، نہ ہی کوئی مشہور آدمی۔ وہ ایک حساب نویس تھا جو کبھی کسی تاجر کے کھاتوں میں لکھتا، کبھی کسی زمیندار کے لیے حساب بناتا۔ مگر نعمان کی اصل پہچان اس کی خاموش نظر تھی۔ وہ لوگوں کو دیکھتا، ان کی باتوں کے پیچھے چھپے ارادے پڑتا اور کبھی جلدی نتیجہ نہیں نکالتا تھا۔ نعمان نے زندگی میں ایک بات سیکھ لی تھی، جو شخص زیادہ چیختا ہے اس کے ہاتھ اکثر خالی ہوتے ہیں۔ شہر میں ایک بڑا تاجر تھا، فخر الدین۔ دولت، اثر و رسوخ اور تعلقات، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ وہ بادشاہ کے قریب تھا اور دربار میں اس کی بات وزن رکھتی تھی۔ فخر الدین کی تجارت صرف مال کی نہیں تھی، وہ فیصلوں کی تجارت بھی کرتا تھا۔ زمینوں کے جھگڑے، وراثت کے مقدمے، ٹیکس کے معاملات اکثر اس کے فائدے میں نمٹتے۔ ایک دن شہر کے مغربی علاقے میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہوا۔ دریا کے کنارے آباد درجنوں خاندانوں کی زمین اچانک شاہی تحویل میں لینے کا اعلان ہو گیا۔ کہا گیا کہ وہاں گودام بنیں گے، مگر اصل میں وہ زمین فخر الدین خرید چکا تھا، بس مہر لگنا باقی تھی۔ لوگ فریاد لے کر دربار پہنچے۔ بوڑھے، عورتیں، کسان، سب کی ایک ہی دہائی تھی کہ ان کی نسلوں کی زمین ان سے چھینی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے دربار لگایا، مگر فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نعمان بھی ہجوم میں کھڑا تھا۔ اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے، خوف، بے بسی اور خاموش غصہ۔ دربار میں فخر الدین نے بڑے اعتماد سے کہا کہ زمین ویران ہے، لوگ ناجائز قابض ہیں اور شاہی خزانے کو فائدہ ہوگا۔ وزراء نے سر ہلائے، کاتبوں نے لکھا، اور فیصلہ سنانے ہی والا تھا کہ نعمان نے قدم آگے بڑھایا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ایک عام آدمی کا یوں آگے آنا معمول نہیں تھا۔ نعمان نے اجازت مانگی اور غیر متوقع طور پر بادشاہ نے دے دی۔ شاید اس دن بادشاہ خود بھی اندر سے کسی سچ کی تلاش میں تھا۔ نعمان نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر زمین ویران ہے تو گودام بنانے سے پہلے شاہی اہلکار وہاں جا کر نشانات دیکھ لیں۔ اگر واقعی وہاں کوئی آباد نہیں تو وہ خود گواہی دے گا۔ یہ بات دربار کو ناگوار گزری۔ فخر الدین مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں سختی تھی۔ بادشاہ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد حکم دیا کہ تحقیق ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہر کی ہوا بدلنی شروع ہوئی۔ نعمان جانتا تھا کہ اس ایک بات کے بعد اب واپسی آسان نہیں۔ اس نے طاقت کو للکارا تھا، اور طاقت کبھی خاموش نہیں بیٹھتی۔ اور یہاں سے وہ واقعہ شروع ہونے والا تھا جو صرف زمین کا نہیں، پورے شہر کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اسی رات جب نعمان کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً چراغ روشن نہیں کیا۔ اس نے آواز سے پہلے خاموشی کو سنا۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں اکثر خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار ذرا سخت۔ نعمان نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 سپاہی کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے ایک گھوڑا تھا اور گھوڑے پر شاہی نشان۔ پیغام مختصر تھا، بادشاہ نے فوراً طلب کیا ہے۔ نعمان جان گیا کہ تحقیق کا حکم صرف کاغذ پر نہیں رہا، اب اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے تھے۔ دربار اس وقت خالی تھا، نہ وزراء، نہ امیر، صرف بادشاہ، چند محافظ اور وہی تاجر فخر الدین جو ستون کے سائے میں خاموش کھڑا تھا۔ یہ خاموشی دربار کی معمول کی خاموشی نہیں تھی، یہ انتظار کی خاموشی تھی۔ بادشاہ نے نعمان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر نعمان کھڑا ہی رہا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں وہ سوال جو اکثر طاقتور لوگوں کو دیر سے ستاتا ہے۔ بادشاہ نے بات شروع کی۔
उसने पूछा कि नौमान ने दरबार में बोलने की जुर्रत क्यों की और उसे किस बुनियाद पर यकीन था कि जमीन वाकई आबाद है। नौमान ने जवाब में कोई इल्जाम नहीं लगाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने बचपन वहीं गुजारा था, दरिया के किनारे, और वो जानता है कि मिट्टी कब खाली होती है और कब जरखीज। उसने ये भी कहा कि अगर तहकीक में वो गलत साबित हुआ तो वो खुद सजा कबूल करेगा। फखरालदीन ने पहली बार मुदाखलत की। उसकी आवाज नरम थी मगर लफ्ज तेज। उसने कहा कि रियासत फैसले जज्बात पर नहीं, कागज पर करती है, और कागज उसके पास था। बादशाह ने दोनों की बात सुनी मगर कोई फैसला नहीं दिया। उसने हुक्म दिया कि अगले दिन शाही अमला जमीन का मायना करे और नौमान भी साथ जाए। यह फैसला फखरालदीन को पसंद नहीं आया मगर वो कुछ कह न सका। अगले दिन दरिया के किनारे वो सब कुछ सामने आ गया जो कागज में छुपा दिया गया था। कुछ मकान, कन्वे, खेत और वो कब्रें जिनमें पछली नस्लें सो रही थीं। शाही अहलकार खामोश थे, कलम रुक गए थे। नौमान ने कुछ नहीं कहा। उसने लोगों को भी नहीं भड़काया। उसने सिर्फ देखा कि सच को देखने के बाद आंखें कैसे झपकती हैं। इसी दिन रिपोर्ट तैयार हुई मगर दरबार तक पहुंचने से पहले ही वो रिपोर्ट बदल दी गई। फखरालदीन ने अपनी असल ताकत दिखाई। उसने गवाहों को खरीदा, तहरीरों में तब्दीली करवाई और मामला एक बार फिर धंधला दिया। शहर में अफवाह फैल गई कि नौमान ने बादशाह को गुमराह करने की कोशिश की है। नौमान के लिए अब शहर तंग होने लगा। जिन दरवाजों पर वो पहले इज्जत से दाखिल होता था अब वो बंद होने लगे। लोग सलाम तो करते थे मगर आंखों में डर था। नौमान समझ गया कि असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। एक शाम वो दरिया के किनारे बैठा था कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसने बताया कि वो कभी शाही कातिब था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह तहरीरें बदलती हैं और फैसले बकते हैं। उसने नौमान को एक पुराना संदूक दिया जिसमें मेहरों, हिसाबों और गवाहियों की नकलें थीं। ये वो सबूत था जो सिर्फ जमीन के नहीं, पूरे निजाम के खिलाफ था। नौमान जानता था कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं रहा। यह संदूक अगर दरबार तक पहुंच गया तो सिर्फ फखरालदीन नहीं, कई नकाब उतरेंगे, और अगर रास्ते में पकड़ा गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसी रात नौमान ने शहर छोड़ दिया। लोगों ने समझा वो डर कर भाग गया है मगर असल में वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां सच अकेला होता है मगर कमजोर नहीं। शहर में फखरालदीन ने सुख का सांस लिया मगर उसके दिल में पहली बार खौफ ने जगह बनाई, क्योंकि वो जानता था कि सच अगर एक बार निकल जाए तो उसे दोबारा कैद करना आसान नहीं होता। और यही खौफ आने वाले दिनों में पूरे शहर की बुनियादें हिलाने वाला था। नौमान ने शहर छोड़ा तो उसका मकसद फिरार नहीं था बल्कि वक्त खरीदना था। वो जानता था कि सच को फौरन दरबार में पेश करना खुदकशी के बराबर है। सच को जिंदा रहने के लिए पहले महफूज होना पड़ता है। वो कई दिन सफर करता रहा, बस्तियों, सराओं और वीरान रास्तों से गुजरा। जहां जाता लोगों की हालत देखता। हर जगह एक ही कहानी थी, टैक्स का बोझ, ताकतोरों की मनमानी और इंसाफ के नाम पर खामोशी। नौमान को अब यकीन हो चला था कि मसला सिर्फ एक ताजिर या एक जमीन का नहीं बल्कि एक ऐसी सोच का है जो तख्त के साए में पल रही थी। आखिरकार वो एक ऐसे शहर पहुंचा जो दारुल हुकूमत से दूर था मगर इल्मी एतबार से मशहूर था। यहाँ काजी, मुदर्रिस और कातिब रहते थे जिनकी साख अभी बाकी थी। नौमान ने एक पुराने काजी सिराजुद्दीन से मुलाकात की। वो उम्र रसीदा था मगर नजर साफ और आवाज मजबूत। नौमान ने कोई जज्बाती बात नहीं की। उसने संदूक खोला और कागजात एक एक करके सामने रख दिए। मेहरें, तारीखें, बदले हुए हिसाब और वो नाम जो दरबार में इज्जत से लिए जाते थे। काजी ने सब कुछ खामोशी से देखा, फिर सिर्फ एक बात कही, ये कागज अगर झूठ हो तो एक दिन भी न टुके और अगर सच हो तो एक जान काफी नहीं रहेगी। काजी ने फैसला किया कि मामला आम दरबार में नहीं बल्कि बादशाह के सामने तन्हाई में पेश किया जाए, क्योंकि सच जब भीड़ में जाए तो शोर बन जाता है और खामोशी में जाए तो फैसला। उधर शहर जरंगार में हालात बदलने लगे थे। फखरालदीन ने महसूस किया कि बादशाह अब पहले जैसा मुतमईन नहीं रहा। वो कम बोलता, ज्यादा सोचता और दरबार जल्द बर्खास्त कर देता। ये तब्दीली फखरालदीन के लिए खतरे की घंटी थी।
उसी दौरान दाराल हुकूमत में एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। शाही खजाने में कमी जाहिर हुई, हिसाबात में फर्क था और इल्जाम एक कमजोर अफसर पर डाल दिया गया। वो अफसर वही था जिसने जमीन के मायने के वक्त सच लिखने की कोशिश की थी। उसे दरबार में लाया गया। वो कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में पछतावा नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने वही लिखा जो देखा। बादशाह ने पहली बार गवाहों को गौर से देखा। वही लोग, वही जबान, वही तैयार शुदा अल्फाज। मगर इस बार बादशाह के दिल में एक सवाल उठ चुका था। अगर सब सच बोल रहे हैं तो कहानियां एक जैसी क्यों हैं? इसी दिन काजी सिराजुद्दीन दरबार पहुंचा, नौमान के बगैर। उसने बादशाह को पैगाम भेजा कि वो एक ऐसा मामला लाया है जो सिर्फ बादशाह अकेला सुन सकता है। रात को महल के अंदरूनी हिस्से में मुलाकात हुई। काजी ने संदूक खोला और बादशाह के सामने वो सब रख दिया जो बरसों से छुपा हुआ था। बादशाह के हाथ कांपने लगे। ये कागज किसी अफवाह का नतीजा नहीं थे, ये उसके दस्तख्तों तक पहुंचते थे। बादशाह ने काजी से पूछा, ये सब पहले क्यों नहीं आया? काजी ने जवाब दिया, क्योंकि सच रास्ता मांगता है और रास्ते अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। उसी रात बादशाह ने एक फैसला किया, मगर उसका ऐलान नहीं किया। उसने हुक्म दिया कि नौमान को खामोशी से वापस बुलाया जाए और फखरालदीन पर नजर रखी जाए। नौमान को पैगाम मिला तो वो जान गया कि अब खेल खुलने वाला है। वो वापस लौटा, मगर इस बार एक अकेला आदमी नहीं, बल्कि एक गवाही बनकर। फखरालदीन को भी खबर हो चुकी थी कि हुआ का रख बदल रहा है। उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया, वही चाल जो अक्सर ताकतूर लोग सच के सामने खेलते हैं। वो अवाम को अपने साथ मिलाना चाहता था। शहर में ये अफवाह फैलाई गई कि बादशाह को गमराह किया जा रहा है, कि एक मामूली आदमी रियासत को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहा है। हुजूम तैयार होने लगा और नौमान का नाम पहली बार नफरत के साथ लिया जाने लगा। बादशाह ये सब देख रहा था और अब फैसला सिर्फ इंसाफ का नहीं, हुकूमत के मुस्तकबल का बन चुका था। नौमान जब शहर जरंगार वापस पहुंचा तो फजा बदली हुई थी। वही गलियां, वही बाजार, मगर लोगों की आंखों में अब सवाल थे। कुछ नजरें नफरत से भरी थीं, कुछ खामोश उम्मीद से। नौमान ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि इस मरहले पर बोलना नहीं, ठहरना जरूरी है। फखरालदीन ने अवामी दबाव बढ़ाने के लिए शहर के बड़े ताजरों और चंद मजहबी खतीबों को साथ मिला लिया था। बाजारों में बात फैलने लगी कि नौमान जैसे लोग रियासत को कमजोर करते हैं, कि ये सब गैर मिल्की साजिश है और कि बादशाह को बहकाया जा रहा है। हुजूम वो हथियार था जो हमेशा सच के खिलाफ इस्तेमाल होता है, क्योंकि हुजूम सवाल नहीं करता। बादशाह ने ये सब देखा, मगर इस बार उसने दरबार नहीं बुलाया। उसने शहर के मरकजी मैदान में अवामी समात का हुक्म दिया। यह फैसला गैर मामूली था और इसी में असल खतरा भी छिपा था। मैदान भर चुका था। ताजिर, किसान, इल्मा, सिपाही, औरतें सब मौजूद थे। फखरालदीन एतमाद के साथ खड़ा था, नौमान खामोशी से एक तरफ। कोई शाही खतबा नहीं, कोई तशद्दा इसकरपट नहीं। बादशाह ने खुद बोलना शुरू किया। उसने लंबी बात नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा कि आज इल्जाम नहीं, हिसाब होगा। फखरालदीन को आगे बुलाया गया। उसने वही बातें दोहराएं जो वो पहले कर चुका था। रियासत का फायदा, नज्म व ज़ब्त, दुश्मनों की साजिश। हुजूम ने सर हिलाए। फिर नामान को बुलाया गया। नामान ने भी तकरीर नहीं की। उसने संदूक खोला, मगर इस बार कागज नहीं निकाले। उसने सिर्फ एक कागज बादशाह के हवाले किया, वही असल रिपोर्ट, बगैर तब्दीली के, जिस पर वो अफसर अब भी कैद में था। बादशाह ने अफसर को भी बुलाया। उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने ये खुद लिखा था? अफसर ने सिर हिलाया। बादशाह ने फखरालदीन की तरफ देखा। क्या ये तहरीर बदली गई थी? फखरालदीन खामोश रहा। खामोशी मैदान में फैल गई। ये वो लम्हा था जब हुजूम भी रख गया, क्योंकि सच जब वाजे हो जाए तो शौर भी सांस लेता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फखरालदीन के तमाम हिसाबात अवाम के सामने खोले जाएं। जो कुछ सामने आया वो सिर्फ एक जमीन या एक अफसर की कहानी नहीं थी। वो बरसों की लौट, जाली मेहरें और खरीदे गए फैसलों का रिकॉर्ड था। फखरालदीन को गिरफ्तार किया गया। हुजूम जो कुछ देर पहले नौमान के खिलाफ था, अब खामोश था, क्योंकि वो जान गया था कि असल धोखा किसने दिया था। बादशाह ने उस दिन कोई जश्न नहीं मनाया।
उसने सिर्फ एक हुक्म दिया, जो फैसले कागज पर नहीं जमीर पर होंगे वही कायम रहेंगे। नौमान को इनाम, मनसिब और करबत की पेशकश की गई। नौमान ने इनकार कर दिया। उसने कहा, जहां पनाह, अगर मैं यहां रख गया तो मैं भी कागज का हिस्सा बन जाऊंगा। सच को दरबार से ज्यादा गलियों की जरूरत होती है। बादशाह ने पहली बार किसी इनकार को इज्जत दी। फखरालदीन को सजा मिली, मगर शहर की असल सजा लोगों को मिली, सच देखने की और मानने की। नौमान शहर से निकल गया। कोई जुलूस नहीं, कोई रुखसती नहीं, मगर उसके जाने के बाद फैसले बदलने लगे। दरबार में खामोशी आई, मगर वो खामोशी खौफ की नहीं, सोच की थी। लोग आज भी कहते हैं कि उस शहर में एक आदमी आया था जो न बागी था न हीरो, वो सिर्फ आईना था। और आईने का कसूर यही होता है कि वो चेहरा वैसा ही दिखाता है जैसा वो होता है। और बादशाह, वो आखिरकार समझ गया कि हुकूमत तख्त से नहीं, सच सुनने की हिम्मत से चलती है।